Assalamu alaikum. Today's lecture is lecture number 3, and in this lecture we will study about circle and parabolas. In the previous lecture we have studied about Cartesian coordinates in the plane, increments and straight lines, slope, equation of line, point slope form of equation, slope intercept form of equation, parallel and perpendicular lines. In today's lecture, we will study about distance in the plane, circles in the plane, and parabolas. Distance in the plane. Basically, we have to find the distance between 2 points. The distance between points in the plane is calculated with a formula that comes from Pythagoras theorem. You all are familiar with the Pythagoras theorem. Here we have a plane, xy plane, and we have 2 points P and Q. The coordinates of P is x1, y1, and the coordinates of Q is x2, y2. We have to find the distance between these 2 points. Let's take a point C, which is opposite to the point P and point Q. Now here PC is the horizontal distance between P and Q, and CQ is the vertical distance between P and Q. Now this is a right angle triangle. Now the distance PC is x2 minus x1, because this is the horizontal distance between P and Q. This point is x2, y1, because here this is x coordinate of this point is x2, and y coordinate of this point is y1. So this distance is x2 minus x1, and this distance, vertical distance, is y2 minus y1. Now this is the right angle triangle, so you all know about the Pythagoras theorem. Now PQ is the hypotenuse of the triangle. The Pythagoras theorem says square of hypotenuse is equal to square of perpendicular plus square of base. Now here hypotenuse is PQ, perpendicular is CQ, and base is PC. Now we have to find the distance PQ. Let's say this distance is D, so it will be D square, and the distance CQ is y2 minus y1, so it will be y2 minus y1 square, plus PC distance is x2 minus x1, that is x2 minus x1 square. Now we have to find D. Take square root on both sides of the equation. We have D is equal to square root of y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. So the distance between 2 points is this. Here this is basically, we can also write it as delta y square plus delta x square.
just it is a representation for the difference. Okay, this is change in x and change in y. So this is the distance between point P and Q whose coordinates are x1, y1 and x2, y2 respectively. Now here we have to calculate the distance between P and Q. The coordinates of P is -1, 2 and coordinates of Q is 3, 4. Let's say this is x1 and this is y1, this is x2 and this is y2. The distance formula is d is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now substituting these values in this formula, here x2 minus x1 is 3 minus 1 whole square and y2 minus y1 4 minus 2 whole square. Now here minus this is minus plus 3 plus 1 is 4, square of 4 plus 4 minus 2 is 2, so this is square of 2. Now calculating, this is square root 20 and further simplifying, square root 20 is equal to 2 square root 5. So the distance between these 2 points P and Q is 2 square root 5. Now circle in the plane. Now we have to discuss the equation of circle. Now equation of circle is basically comes from the distance formula. First we will see the definition of the circle. A circle of radius a is the set of all points P whose distance from the center C with coordinates hk equals a. बेसिकली सर्कल हमारे पास ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसका किसी एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस सेम होता है. यानी अब यहाँ पे देखें, लेट्स से दीज आर द सेट ऑफ पॉइंट्स पी एक्स वाई. यहाँ पे देखें ये हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी इज सेम. सो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ द सर्कल. नाउ लेट्स से वी हैव दिस सर्कल विथ points xy, P point represents all the points of this circle and this is the center C with coordinates h and k. Now the distance of all the points of the circle from C is same and let's suppose this is A. The distance between P and C is A. Now using distance formula, we will write the formula for the distance between P and C. So the coordinates of P is xy and the coordinates of C is hk. So using distance formula, this is square root of x minus h whole square. This is basically x coordinates of P and C, and y minus k whole square. These are the y coordinates of P and C. Now this is equal to the distance between P and C and here the distance between P and C is A. So this is equal to A. Now taking square on both sides of the equation, we have this equation 1. So this is the standard equation of circle with center hk, these values hk, and the radius A. The circle of radius A is equal to 1 and centered at the origin is the unit circle with equation x square plus y square is equal to 1. Now let's suppose we have a circle with radius 1. So substituting here A is equal to 1 and centered at origin. Origin means 0, 0. That is h and k both are 0. So the equation will be x square plus y square is equal to 1 and this is unit circle.
unit means 1, it means radius is 1. Now let's say we have this inequality. We have replaced equal with less than sign. So this is basically all the interior points of the circle. Okay, means all the interior points of the circle, and the boundary points are not included. If we replace this sign with greater, then it means all the set of points outside the circle of radius A centered at H and HK. And now let's suppose we put equal sign here. It means the boundary is also included, all the interior points and boundary is also included. Similarly, if we put equal sign here, it means all the boundary points and all the exterior points of the circle of radius A centered at HK. Now example 5, the standard equation for the circle of radius 2 centered at 3, 4. Now here radius is 2, basically this is A, and center of the circle is 3, 4, that is H is 3 and K is 4. So the equation of the circle will be x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square is equal to 2 square. यहाँ पे आपके पास रेडियस का स्क्वायर होता है, सो इट विल बी 4. ठीक है, दिस इज h एंड दिस इज k. अब यहाँ पे बी पार्ट में आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है. आपने इस सर्कल का सेंटर और रेडियस बताना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें आपके पास ये h है, ठीक है, और यहाँ पे k होता है आपके पास. ठीक है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें इधर माइनस का साइन होता है. ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखूं, इट इज -1 स्क्वायर प्लस y माइनस -5 स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपके पास रेडियस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए. सो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 3 होता है. ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. सो हियर दिस सेंटर, सॉरी, हियर h इज इक्वल टू 1, k is equal to, basically this is h and this is k is equal to -5 and a is equal to square root 3. So the center of this circle is 1 -5 and radius of this circle is square root 3. Now we have this equation of circle. If we simplify this equation, plus y minus 4 whole square is equal to 4. Let's simplify this equation. इसको हम expand करेंगे स्क्वायर के फॉर्मूला को. ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 6x plus 9, and from here we have y square plus 8y plus 16 is equal to 4. Now x square plus y square minus 6x plus 8y. Now adding these constants, 16 plus 9 is 25 and 25 minus 4 is 21 is equal to 0. It is simplified to this equation. यानी अगर हम इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आती है. इसको अगर मैं जनरली डिफाइन करना चाहूँ तो ये हमारे पास है ax स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस डी वाई प्लस ई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं लेट्स सपोज मैं ये ए एंड बी यहाँ पे नहीं लिखती, ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसके डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है, और एक्स और वाई की टर्म्स होती हैं, ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम नहीं है तो फिर वो सर्कल नहीं होता, वो हमारे पास एलिप्स बन जाता है। ओके, सो सर्कल इज बेसिकली द स्पेशल फॉर्म ऑफ एलिप्स। फाइंडिंग अ सर्कल सेंटर एंड रेडियस। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब ये आपको इक्वेशन गिवन है, हमने इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम स्क्वायर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x वाली टर्म्स को सेपरेट कर दिया, y वाली टर्म्स को हमने सेपरेट कर दिया और कांस्टेंट को इक्वेशन के बाद ले गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे 4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, यानी x का जो भी कोफिशिएंट है उसको हमने 2 से डिवाइड करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 2, इसको हम कैंसल आउट करेंगे, तो दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 2। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास 6 है, इसको 2 से -6 है, सॉरी, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे। सो दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ -3। अब जो भी हमने एक्स्ट्रा टर्म्स यहाँ पे, एक्स्ट्रा नंबर्स यहाँ पे ऐड किए हैं वो हम इक्वेशन की राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। तो यहाँ पे हमने 4 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर ऐड किया था, तो यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली -6 डिवाइड बाई 2 भी हम राइट साइड पे ऐड करेंगे। दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ 2 एंड दिस इज बेसिकली स्क्वायर ऑफ -3। ओके, अब यहाँ पे ये बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, एंड हेयर वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 -3, स्क्वायर ऑफ -3 इज 9, एंड हेयर वी हैव 3 प्लस 4 प्लस 9। Now this is the formula for x plus 2 whole square, this is formula for y minus 3 whole square, and this is 3 plus 4 is 7, 7 plus 9 is 16. So this is standard form of equation. अब यहाँ पे this is basically square of 4. So the center of this circle is -2, 3, क्योंकि यहाँ पे आपके पास -2 होगा, तो आपके पास h की वैल्यू यहाँ पे -2 है। So -2 and value of k is 3. So the center of this circle is -2, 3, and the radius of the circle is 4. This is A. Now let's discuss parabolas. The graph of the equation y is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is a parabola. ठीक है, आपने जब इक्वेशन ऑफ लाइंस पढ़ी थी तो इक्वेशन ऑफ लाइंस आपके पास लीनियर फंक्शंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे पैराबोलास आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये कंडीशन मस्ट है, दैट इज a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी,
फिर आपके पास लीनियर फंक्शन रह जाएगा एंड यहाँ से आपके पास स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। फिर ये आपके पास पैराबोला नहीं रहेगा। तो पैराबोला के लिए क्वाड्रेटिक टर्म का होना ज़रूरी है। The parabola opens upward if a is greater than 0। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक टर्म है दैट इज एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट आपके पास अगर ग्रेटर देन 0 है तो इट मीन्स द पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स, एंड इफ a is less than 0 then parabola will open downward. The axis of symmetry is the line x is equal to minus b divided by 2a. This is basically axis of symmetry. This is vertical line and this is called the axis of symmetry with equation x is equal to b divided by 2a. अब आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ये आपके पास ऐसी वर्टिकल लाइन होती है जिसके बोथ साइड पे आपका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मीन्स इसके बोथ साइड पे जो ग्राफ है वो एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है, मिरर रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर आप यहाँ पे मिरर रखें ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आपके पास इस साइड पे जो ग्राफ बनेगा वो बेसिकली उस मिरर में जो इसका रिफ्लेक्शन है वो होगा। ठीक है, तो अगर आप पैराबोला की एक साइड स्केच कर लें तो दूसरी आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसका रिफ्लेक्शन स्केच कर सकते हैं। The vertex of the parabola is the point where axis and parabola intersects. Now what is vertex? Vertex is basically the intersecting point of the parabola and axis of symmetry. This is vertex. Now x coordinate of vertex is x is equal to b divided by 2a and y coordinate is found by substituting x is equal to minus b divided by 2a in the parabola's equation. ठीक है, यानी इसका y coordinate हम कैसे फाइंड करेंगे? जब हम x की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से जो आपके पास y की वैल्यू आएगी वो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट होगा। The graph of the equation of the form y is equal to ax square is a parabola whose axis, that is axis of symmetry, is the y-axis. अब हमारे पास जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो ये है। ठीक है, अब इसमें अगर b भी 0 हो जाए और c भी 0 हो जाए तो हमारे पास जस्ट इतना पार्ट रह जाता है, दैट इज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। ठीक है, अगर आपका b और c 0 हो जाए, आपके पास जस्ट ये पार्ट रह जाए, तो ये बेसिकली इस पैराबोला का जो एक्सिस है वो आपके पास y एक्सिस होगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस होगा, यानी y एक्सिस के बोथ साइड पे ग्राफ सिमेट्रिक होगा। The parabola's vertex lies at origin. अब यहाँ पे जो वर्टेक्स है वो क्या होगा? ओरिजिन होगा। The larger the value of absolute value of a, the narrower the parabola. अब यहाँ पे देखें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जितनी बड़ी होगी, जितनी लार्जर होगी, उतना ही आपका जो पैराबोला है वो नैरो होगा। जैसे जैसे वैल्यू कम होती जाएगी तो ये आपके पास वाइड होता जाएगा पैराबोला। जिस तरह आप यहाँ पे ग्राफ में देखें, here a is 2, here a is 1/2, here a is 1/10। तो यहाँ पे देखें 2 as compared to 1/2 and 1/10 is larger। यहाँ पे a की वैल्यू लार्जर है तो आप देखें ये पैराबोला नैरो है। जैसे जैसे a की वैल्यू कम होती जा रही है 1/2 के लिए, अब आपके पास एज कम्पेयर टू y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आपका पैराबोला जो है वो वाइड है। सिमिलरली और मज़ीद हमने a की वैल्यू कम की तो और पैराबोला वाइड हो गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब जब a के साथ नेगेटिव का साइन होता है तो जस्ट क्या डिफरेंस होता है कि आपका जो पैराबोला है इट ओपन्स डाउनवर्ड। यहाँ पे देखें a इज़ -1 एंड हेयर a इज़ -1/6। इनकी जो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर करें तो इट इज़ 1 एंड हेयर एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ 1/6। ठीक है, तो 1 इज़ ग्रेटर देन 1/6। So the graph of
the graph of parabola with a is equal to -1 will be narrower than the graph of the parabola with a is equal to -1/6, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a 1 जो है ये हमारे पास ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1/6. The graph of y is equal to ax square plus bx plus c is a shifted and scaled version of parabola y is equal to ax square. ठीक है, ये जो आपके पास ये फॉर्म है, दिस इज बेसिकली द शिफ्टेड एंड स्केल्ड वर्जन ऑफ दिस पैराबोला. नाउ व्हाट इज शिफ्टेड एंड स्केल्ड वर्जन, इसको हम आगे ग्राफ की शिफ्टिंग एंड स्केलिंग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और तब आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा. In this example, we have to graph this parabola. This is equation of parabola. First, comparing it with this equation, here value of a is -1/2, b is -1, and c is 4. Now, here a is less than 0, so the parabola opens downward. The axis is the vertical line x is equal to -b divided by a. This is axis of symmetry, equation of axis of symmetry. इसमें आपने just values put करनी है, b is -1 and a is -1/2. आपने ये values substitute की तो आपके पास x की value -1 आ जाती है. So here the axis of symmetry is x is equal to -1 और आप लोगों को पता है कि x is equal to -1 का ग्राफ कैसा होना चाहिए. It is vertical line passing through x is equal to -1. Now we have to find the vertex. So the x coordinate of vertex is -1 and the y coordinate of the vertex, we will find the y coordinate of the vertex by substituting x is equal to -1 in this function, in this equation. So इसमें हमने -1 substitute किया तो y की value 9/2 आ गई. तो next here vertex is -1, 9 divided by 2. Now we have to find the x-intercept and y-intercept of the parabola. Now x-intercept means y is equal to, where y is equal to 0. So substituting y is equal to 0 in the equation, इस equation को हमने factorize किया. यहाँ पे x is equal to 2 and x is equal to -4. So this is x-intercept, यानी आपका जो parabola है वो 2 और -4 पे x-axis को कट करते हुए गुजरेगा. Now y-intercept is a point where x is equal to 0. तो आप जब अपनी equation में x को 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 4 आ जाती है. ये मैं इधर आपको दिखा देती हूँ. Here if x is equal to 0 then y is equal to 4. So आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस को 4 पे कट करते हुए गुजरेगा. Now this is the graph of parabola. इसको हम स्केच कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपने देख लिया कि a आपके पास लेस देन 0 था, सो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, ये आपको पता लग गया. उसके बाद आपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री स्केच करना है. एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपके पास था x इज इक्वल टू -1. अब x -1 ये पॉइंट है, इस पे आपने वर्टिकल लाइन स्केच कर दी. दिस इज x इज इक्वल टू -1. अब आपको पता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बोथ साइड पे ग्राफ सेम होगा, तो आप जस्ट इसकी एक साइड स्केच कर लें और दूसरी को जस्ट उसके बराबर बराबर उसके जैसा उसका रिफ्लेक्शन आपने स्केच कर लेना है. ठीक है. अब हमारे पास वर्टेक्स, उसके बाद हमने पॉइंट आउट करना है वर्टेक्स कहाँ पे है. तो वर्टेक्स इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री. तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -1 एंड 9/2 है. ठीक है. तो ये हमारे पास -1 तो ये वाला पॉइंट है, 9/2 हमारे पास यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप अपनी स्केलिंग के मुताबिक लेना. आपने जिस तरह से भी स्केल किया है, बेसिकली 9/2 इज
4.5, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 4.5, सो दिस इज वर्टेक्स, ठीक है। आपने वर्टेक्स पॉइंट आउट कर दिया, उसके बाद आपने एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट को पॉइंट आउट करना है। अब यहाँ पे देखें एक्स इंटरसेप्ट आपके पास 2 एंड -4 है, ठीक है। तो 2 आपके पास ये है और -4 आपके पास ये है। अब यहाँ से आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गुजरेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास y इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी y एक्सिस पे 4 पॉइंट पे आपका ग्राफ यहाँ से गुजरेगा। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री के जिस साइड पे आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं, आप उस साइड को स्केच कर लिया करें और दूसरी साइड आप बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन स्केच कर दें। तो अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बोथ साइड पे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, तो आप कोई सी भी एक साइड स्केच कर लें, दूसरी साइड सॉरी 2 पॉइंट्स नहीं हैं, ये आपके पास इस साइड पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम इस वाली साइड को स्केच कर लेंगे, इसको पहले स्केच कर लिया, ठीक है। और इस वाली साइड को बिल्कुल जितना डिस्टेंस इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री से है उतना ही डिस्टेंस हम इस साइड पे भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि ये आपके पास 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट्स का आपके पास 1 यूनिट का डिस्टेंस है, तो इस साइड पे भी 1 यूनिट का आप डिस्टेंस ले लेंगे। तो 1 से 1 यूनिट का डिस्टेंस -2 होगा, तो आपने फिर इस साइड पे भी सेम ग्राफ बना लेना है और यहाँ से कट करते हुए गुजरना है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ भी आपको स्केच करना है पैराबोला, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यहाँ पे देखें आपके पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है एंड c की वैल्यू 5 है। नाउ हेयर a इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री फाइंड करनी है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए ये आपके पास इक्वेशन है, इसमें आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट की, तो आपके पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट आपके पास आपने फाइंड किया वर्टेक्स के लिए y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपने x की वैल्यू -1 यहाँ सब्सटीट्यूट की, तो आपके पास y की वैल्यू 3 आ जाती है। सो वर्टेक्स इज -1 3। नेक्स्ट एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपने y को 0 सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद आपने इसके फैक्टर्स बनाए, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स आपके पास रियल फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। तो रियल फैक्टर्स अगर इसके नहीं बनते तो इट मीन्स के ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा पैराबोला, ठीक है। तो ये इसके एक्स इंटरसेप्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ पर इसके कोई रियल फैक्टर्स नहीं आ रहे, इमेजिनरी फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y आपके पास 5 आ जाता है, सो y इंटरसेप्ट इज 5। आपका जो पैराबोला है वो y एक्सिस को 5 पे कट करते हुए गुजरेगा। नाउ हेयर एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री, x इज इक्वल टू -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्टेक्स हमने पॉइंट आउट करना है, दिस इज वर्टेक्स -1 एंड 3, ओके। देन वी हैव टू प्लॉट y इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट इज 5, तो ये आपके पास y एक्सिस पे 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपका ये डिस्टेंस 1 है, तो इस डिस्टेंस पे भी इसके पैरेलल आपने ये पॉइंट स्केच कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये वाली साइड स्केच कर लें, ठीक है। ये वाली साइड एक साइड स्केच हो गई, तो दूसरी साइड बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन आप स्केच कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपका पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास इसलिए नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला।
नाउ दीज आर सम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, इसको आप लोग ट्राई करें, ठीक है। इजी है, सिंपल है, इजीली हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।